Good evening, students. In our last lecture, we have done our this topic of closure, that is the shutting down of a place of business, organization, company, etc. Now, today I shall generally explain you about the dispute resolution aspect of Industrial Dispute Act, because the main aim is of this particular Industrial Dispute Act is that to create a parameter within the limit of which both the employer and employee have to function, right? So nobody can transgress, यानी कि कोई उस boundary को लांघ नहीं सकता. Law always create that boundary within which the concerned people have to, whether the citizen, like for example in this case of industrial dispute, the employer and employee, they have to function within the एक दायरे में रह के काम करना पड़ता है, within the given parameter of the given law, right? Now, talking about dispute resolution, as the name suggests, यानी कि किसी भी dispute का मतलब क्या है कि I have my opinion, you have your opinion, so there is a dispute where there is no consensus. हमारी एक सहमति जहां पे ना हो वहां डिस्प्यूट होने के पूरे चांसेस हैं. और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में ये बहुत कॉमन चीज है कि दोनों की सहमति नहीं बन पाए. तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मतलब है कि उसका सोल्यूशन निकालना, जो डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करना, उसको सॉल्व करना, उसको एमिकेबली शांतिपूर्ण ढंग से उसको निपटाना. हालांकि ये हर समय इतना आसान नहीं होता. इट इज नॉट इजियर to resolve the dispute amicably यानी शांतिपूर्ण ढंग से. बट फिर भी there are various forums, लेबर कोर्ट, ट्राइब्यूनल्स, डिफरेंट चीजें हैं. जो अदालत का सिस्टम है वो एक अलग है, बट उससे पहले भी एक सिस्टम है जिसके द्वारा हम डिस्प्यूट को कम करने की कोशिश कर रहे हैं. यू सी स्टूडेंट्स, व्हेन अ केस गोज टू द कोर्ट, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच का जब केस अदालत में जाता है, then it becomes a legal matter, right? And whatever award or the judgment is given by the court, that has to be adhered to both the parties. That is one thing. But can we develop a mechanism whereby within the context of our functioning, that is the employer and employee, we create a mechanism whereby dispute do not arise at all, or if they arise at all, they are very amicably, peacefully settled within the organization only or across the organization only. So yes, there have been mechanisms. Now, dispute resolution machinery, this is called. Within the system of the employer-employee, within the organization or across the industry, these are certain things which I will explain in short. However, you need not do these things in detail, but yet I will explain this. The first one is workers' participation in management. Now, this was very much touted. इसकी बहुत बातचीत हुई थी 50s and 60s में, and in many PSUs it was implemented. That public sector units or the government companies, they were implemented this WPM. Now, the main aspect of WPM was, students, that India is a democracy. So let us create a democracy within the industry itself. That is that the workers will be put on the management, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में वर्कर्स को रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा, so that he is able to raise the voices of the workers within the management. Since he becomes one of the part of the management, so naturally he will relate to the issues and problems faced by the workers in a more suitable manner, so that the management understands it. So it was a kind of industrial democracy with the concept of this workers' participation in management was created. But let me tell you, it was not very successful, because as you know, the management people generally, they don't accept the workers as a part of their management. By management means the top management, that is the board of directors. He was called as worker director. तो उसकी एक्सेप्टेंस इतनी ज्यादा हमारे देश में कम से कम नहीं हो पाई. यूरोपियन कंट्रीज में काफी हद तक सक्सेसफुल था, बट हमारे देश में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया था. This is the first thing. Then joint management committee. This is a committee, as the name suggests, it is jointly managed by the employer and employee, in the sense
कि वर्कर्स एंड देयर यूनियन दे सेंड देयर मेंबर्स to this joint management committee. It can be within the industry or within the company itself. और इसका मुख्य उद्देश्य क्या, that it is equally represented by the workers and the management. Management का मतलब the employers. So दोनों मिलके एक कमेटी बनाते थे and issues before they rise, they were settled within the committee itself. So there was regular meeting of joint management committee and they used to manage the functioning of the organization in a peaceful manner. So if any issue came, so there will be talk between the representative from the workers side, from the management side. They will sit together, they will try to resolve the issues. So these all mechanisms are within the system itself. These are not courts, but these are self-containing systems. यानी कि ये system है जो within the system है, और ये इसलिए है जिससे कि जो डिस्टेंशंस हैं, डिस्प्यूट्स हैं, उनको हम शांतिपूर्ण ढंग से सुलझा सके अपने ही घर में, हमें बाहर जाने की जरूरत ना पड़े. दैट इज टू द कोर्ट्स एंड ऑल, राइट. देन शॉप काउंसिल्स. शॉप का मतलब होता है जी शॉप फ्लोर लेवल, यानी कि जो लोएस्ट लेवल. जैसे एक फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में जो एक्चुअल मैकेनिक या मजदूर, जो वर्कर जो काम कर रहा है, ठीक है, तो उस लेवल की काउंसिल्स बनाई जाती थी. और शॉप काउंसिल्स में क्या है कि मैनेजमेंट तक बात पहुंचाने के लिए ये लोग अपना डिस्कशंस करते थे एट द लोएस्ट लेवल. और जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, मान लीजिए मशीन से रिलेटेड है, टेक्निकल या नॉन टेक्निकल जो भी है, उस पर चर्चा होती थी. और उस चर्चा का जो कंक्लूजन होता था उसको टॉप मैनेजमेंट तक पहुंचाने की कोशिश करी जाती थी. सो शॉप काउंसिल्स हैव बीन सक्सेसफुल लार्जली बिकॉज जो टॉप टू डाउन, डाउन टू अप कम्युनिकेशन था, जो कि फीडबैक एक तरह से देता था फ्रॉम द लोएस्ट लेवल, जिससे कि मैनेजमेंट एक्चुअल वर्किंग को समझ पाए या उनकी प्रॉब्लम्स को अप्रिशिएट कर पाए. Then came the collective bargaining. Now the very name suggests collective bargaining means a kind of negotiation. Bargaining का मतलब negotiation होता है. So representative from the workers side and their unions members, and on the other side the management or the employer side, their representative, they come together, they talk together, they resolve the issues amicably. ठीक है. बार्गेनिंग का मतलब होता है कि कुछ आप हमारी बात मानो, कुछ हम आपकी बात मानते हैं, सो दैट देयर इज एक तरह से एक समझौता रीच हो सके. काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज इज डन बिटवीन बोथ द पार्टीज. तो कलेक्टिव बार्गेनिंग बेसिकली इट वाज स्टार्टेड बाय बैट्रिस वेब इन इंग्लैंड. इंग्लैंड में 100 साल पहले ये स्टार्ट किया था. और एज अ नेम सजेस्ट कलेक्टिव, यानी कि मिलजुल के नेगोशिएट करें और अपने मैटर को सुलझा लें. ठीक है. ट्राइपार्टाइट बॉडी, ये वो बॉडीज हैं विच आर रिप्रेजेंटेड एट द नेशनल लेवल, एट द स्टेट लेवल एंड इवन एट द लोएस्ट लेवल ऑल्सो. एज द नेम सजेस्ट ट्राई का मतलब तीन. इसमें तीन पार्टीज होती हैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयज एंड ऑल्सो फ्रॉम द गवर्नमेंट. इट कैन बी लोकल गवर्नमेंट, इट कैन बी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द इशू और अक्रॉस द इशू. अक्रॉस का मतलब है अक्रॉस द इंडस्ट्रीज, बहुत सारी कंपनीज इफेक्ट हो रही हैं, तो जॉइंटली सरकार, वर्कर, उतनी सारी कंपनीज के जो कि एक इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव, एम्प्लॉयज के रिप्रेजेंटेटिव, ये तीनों मिलके कोई भी मुद्दा है, ठीक है, उसको सुलझाते हैं. बट यहाँ पार्टी, गवर्नमेंट भी एक पार्टी होती है जो कि एक तरह से ओवरसी करती है कि कोई सुलहनामा हो जाए, कोई रास्ता निकल आए जिससे कि दोनों के बीच में किसी भी तरह की डिस्टेंशन ना रहे. ठीक है. वी विल डू सर्टेन केसेस, लाइव केस स्टडीज ऑल्सो. हीरो होंडा का था और भी 2-3 ऐसे केस थे, मारुति का था, जिसमें बहुत मतलब वो स्ट्राइक हुई थी, बहुत सारे डिस्प्यूट्स हुए थे. सो वी विल डिस्कस इन फ्यूचर. ठीक है. कोड ऑफ डिसिप्लिन स्टूडेंट्स क्या है? एज अ नेम सजेस्ट कोड, यानी कि कुछ रूल बुक की तरह है कि हमारी कंपनी में ये कोड ऑफ डिसिप्लिन है एंड द वर्कर्स इवन हैव टू अवॉइड बाय दैट. And also the employers also have to abide by that. Nobody can go beyond the preview of code of discipline. So ये इंडस्ट्री में अप्लाई होती है और अक्रॉस द कंपनी भी अप्लाई होती है. मुद्दा यह है कि जो कोड ऑफ डिसिप्लिन में है उसके सिग्नेटरीज होते हैं, यानी कि इट इज साइन बाय द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द वर्कर एंड मैनेजमेंट बोथ, और उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है कि आप ये चीजें मेंटेन करके रखेंगे. ठीक है. तो
and everybody follows those rules. So those are the code of discipline. Then standing order prevention machinery. There is a act, जो ऊपर लिखी चीज है कोड ऑफ डिसिप्लिन, इसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका क्या है बच्चों कि स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट है, एक कानून है जिसे स्टैंडिंग ऑर्डर, और स्टैंडिंग ऑर्डर से मतलब होता है एक तरह इसका एग्रीमेंट रिटर्न में होता है. इट इज साइंड बाय द मैनेजमेंट एंड इट इज ऑल्सो साइंड बाय द, जैसे यूनियन लीडर वगैरह होते हैं जो वर्कर्स के, वो साइन करते हैं, और उसकी समय अवधि होती है कि स्टैंडिंग ऑर्डर्स विल होल्ड गुड फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर 2 ईयर. उसकी मियाद होती है कि जो जो चीजें पॉइंट हम स्टैंडिंग ऑर्डर्स में लिख रहे हैं दे आर टू बी अवॉइडेड बाय बोथ बाय द वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट. नोबडी कैन वायलेट दोज ऑर्डर्स. ठीक है, तो उसको एक एग्रीमेंट की तरह, एक रूल बुक की तरह, साइंड रूल बुक की तरह रखा जाता है, और जितनी भी बातें उसमें लिखी जाती हैं फॉर द एम्प्लॉयर और द एम्प्लॉयज, उनको उन्हें एडहेयर करना पड़ता है, मानना पड़ता है. तो ये एक तरह का प्रिवेंटिव मैकेनिज्म है कि हम इश्यूज को बढ़ने से पहले कोई ऐसा मैकेनिज्म, प्रिवेंटिव मैकेनिज्म बनाएं जिससे कि चीजों की रोकथाम बढ़ने से पहले हो सके. क्योंकि झगड़ा हो गया उसके बाद फिर कोर्ट का ही रास्ता सूझता है, बट कोर्ट के रास्ते सूझने से पहले हमारे अंदर सिस्टम में विद इन द इंडस्ट्री इस तरह की मैकेनिज्म डेवलप होनी चाहिए कि देयर इज अ हार्मोनियस एंड प्रिवेंटिव मैकेनिज्म वर्किंग विद इन द इंडस्ट्री और द कंपनी, so that the things don't escalate. Escalate यानी कि वो बढ़े ना, वो पहले ही contain हो जाए. So this was all about today's lecture. In the next lecture we will move on to the settlement machinery, जिसमें हम conciliation, arbitration, labor courts इनकी बातें करेंगे. Right? That's it.